Yesterday, I talked about three graphs, na? Sine graph, cos graph, and tan graph. Yes, sir. So here we will be talking about the secant graph, cot graph, and cosecant graph. But before talking the graph, I want to introduce you something new. Anyway, I will introduce that new. What is happening? I am not. Okay. Let me draw the graph first. Then we will come to know about everything. We'll solve some questions also here. So three graphs completed. The fourth graph is y equal to cot of x. We are interested to the graph of y equal to cot x. Again, we are not going to take much time in cot x. Just remember, cot x means what? Cos x upon sin x. Cot x means what? Cos x upon sin x. Okay. So just what you do, just means do two three things here. First of all, just realize when this cot x will be 0 and when this cot x will be undefined. Just think like that. When this cortex will be 0 and when this cortex will be undefined. See, if denominator is 0, then definitely it will be undefined. Am I right? So if you're putting sin x equal to 0, then what will happen? Your cot means y will be undefined. Undefined means it can be plus infinity, it can be minus infinity also. Now, can you tell me sin x was being 0 at what points? Sin x was being 0 at what Zero. points? Can you tell me? Not only Sir, 0, n pi. integral So at multiple of pi, yeah. It means that when we will be having x equal to n pi, we will be getting y at plus minus infinity. Means our function cortex will be undefined at that point. Now, and the second important thing I would like to ask from you guys, that when this cortex will be equal to 0, can you tell me? See, if numerator becomes 0, The then cos x what 0. function 0? Is it clear? When the cos numerator becomes 0. So when your cos becomes 0, your entire this cot will be 0, means y will become 0. Now can you tell me when is your cos x 0? so At 2n plus 1 The by 2n plus 1 and 2 pi by 2. at odd multiple of pi by 2. Now at odd multiple of pi by 2, your cos x is 0, means this will be what? 0. Okay. So now we are going to plot the graph based on this information only. So just think here, we will be having cot value 0 and we will be having cot value undefined also. So based on these two information, we can draw the graph. See how I'm drawing. Let me take some quadrant first. This is the y-axis and here I'm taking x-axis. See what you do, the points where you see always whenever you face any type of functions where you face something undefined. So at those points where your function is undefined, try to draw the vertical lines. Try to draw the vertical lines. So can you tell me at which points this cortex will be undefined? N pi. N pi means what? X equal to 0. It will be pi. It will be 2 pi. It will be 3 pi. Am I right here? Minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi also possible. So at these points, you draw the vertical lines. I will tell you later why we draw the vertical lines. So 0, now I'm talking here 0, then pi, okay, then 2 pi, this is your 2 pi, and one more interval I'll take. Pi, and here it's 2 pi. Here let us take 3 pi, okay. Same thing can take this side, minus pi, minus pi, then take here minus 2 pi, then you can take one more point here, minus 3 pi, okay. And then you draw something like this. Just mark the point 0, this is your pi, this is your 2 pi, this is your 3 pi, okay. This is minus pi, this is minus 2 pi, and this one is minus 3 pi. Now in between 0 to 2 pi, see, your cot will be 0 at how many points? 2n plus odd multiple of pi by 2. Am I right here? Odd multiple of pi by 2.
Means what? If you put n equal to 0, means n belong to z now. So put n equal to 0, you will get here pi by 2, 3 pi by 2, then you will get 5 pi by 2, means like that. In negative, you will get minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus pi by 2. So these are the point you will get here. Now try to draw the graph. So also mark here pi by 2, in between this, here will be 3 pi by 2, and here you will be getting 5 pi by 2. Here your negative angle will come into effect. So minus pi by 2. Here you will get what? Minus 3 pi by 2. And here you will get minus 5 pi by 2. Is the point clear to all of you? Okay, let's draw the graph now. Now, I told you now, it's your choice. Undefined means what? Plus infinity or minus infinity. It's completely your choice. Means if the interval is completely negative, then take minus infinity. And if the interval is completely positive, then take plus infinity. So suppose if I ask 0 to pi by 2. So which quadrant is this? 0 to pi by 2. Khushbu, can you tell me which quadrant is this 0 to pi by 2? Yes, sir. Tell me which quadrant? First quadrant. First quadrant. So in first quadrant, everything is positive, no? In first quadrant, all the functions are positive. So if all the Yes, functions sir. are positive, so should we take plus infinity or minus infinity? We should take plus infinity. Means our Yes, graph should fall from plus infinity. At pi by 2, it will become 0. And then pi by 2 to pi we are coming. So at pi, once again undefined, but pi by 2 to pi which quadrant? Pi by 2 to pi second. which quadrant? Second quadrant. In second quadrant, it is positive or negative? Negative. So it will go to the minus infinity. So that is the graph of cortex. Anyone has problem in understanding this graph? Anyone has a problem? No problem. See, now next come No, to sir. pi to 3 pi by 2. Now tell me pi to 3 pi by 2, which quadrant? Pi to 3 pi by 2. See, greater than pi, less Third. than pi. You can, for understanding purpose, you can mark like this. Say 0, this is your pi by 2, this is your 2 pi, 0 pi by 2, then here you will get, here you will get pi, and this is your 3 pi by 2. So see, pi by 2 to 3 pi by 2, third quadrant. In third quadrant, cot is positive. It means that it will again start from plus infinity. At odd multiple, it becomes 0. Then 3 pi by 2, 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi to fourth quadrant. So it will go to negative. It will go to negative values. Okay. Now again coming to 2 pi to 5 pi by 2. Very simple. 2 pi means what? One complete rotation completed. Again, if you will add 2 pi plus pi by 2 means after completing one rotation, again we are moving in the first quadrant. Again we are in the first quadrant. So this interval is nothing but the first quadrant. 2 pi to 5 by 2, it's nothing but the first quadrant. Everyone understood this? Everyone please tell me understood this or not? Yes, 2 sir. pi to 5 by 2, it's a first Yes, sir. quadrant actually. So same thing, cot it will be positive. So positive and then 0 and then 5 pi by 2, 3 pi. This interval 5 pi by 2 means after completing one rotation, when they are moving second, every angle will be added by 2 pi. See, 2 pi plus pi by 2, 5 pi by 2, then 2 pi plus pi, 3 pi. So 5 pi by 2, 3 pi, it will be the second quadrant, and here you will get negative graph. Okay. So we got here. Now, same thing, what will see? I want to draw the same graph in the negative side. So if you are confused about anti-clockwise, clockwise, forget that. Just remember, I told you now, cot of minus x equal to minus cot x from the definition of allied angle. Did I tell you? Cot of minus x equal to minus cot x means what? Whatever the value you are getting here, see 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. So 0 to pi by 2, your portion is positive or negative? Just tell me. 0 to pi by 2, portion is positive or negative? Positive. Positive, no? 0 to pi by 2, the graph is above x is positive. So if I say, what will happen in minus pi by 2 to 0, this portion will become negative. See, whatever you are saying in 0 to pi by 2, the same portion will become negative when we move in the negative x-axis. ये सबको समझ में आया? Did you get this point?
Yes, sir. sir. Cot of minus x equal to minus cot x. It means that when angle will become negative, means when we will take negative interval, the value of cot will become negative. Okay, so if we are getting something in 0 to pi by 2, its negative will appear in minus pi by 2 0. Means suppose in 0 to pi by 2 we have value 2, we have value here 1, so in minus pi by 2 0 it will become minus 1. This is one way of understanding. And suppose if this way, this is the first way I told you, there is another easiest method. See, don't think much about what is clockwise, what is anti-clockwise. Are you guys facing confusion in understanding clockwise, anti-clockwise? See, very simple, man. If we are moving in this, see, watch. This is your clock now. This is 12, this is 6. So how the minute hand moves, how the clock rotates, like that now. Everything rotates this. So this is your clockwise sense. And if you are moving in anti-clockwise, means opposite to the direction of clock, it is anti-clockwise sense. So here in trigonometry there is a standard notation. देखो यहाँ पर तुम लोग समझने की कोशिश करो. सपोज करो कि मैंने क्वाड्रेंट ऐसे बनाया. यदि मैं रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा, सॉरी क्लॉकवाइज कर दूंगा, तो ये एंगल 0, ये माइनस पाई बाई 2 होगा. ठीक है, और ये एंगल माइनस पाई कहलाएगा, और ये एंगल तुम्हारा माइनस 3 पाई बाई 2 कहलाएगा. तो ये एंगल क्या होगा, अब ये माइनस 2 पाई का. तो यदि आपने रोटेशन चेंज कर दिया तो आपका सब कुछ क्या होगा, चेंज. देखो 0 था, ये पाई बाई 2 था, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे थे. जब मैं क्लॉकवाइज में कर गया तो सारा एंगल्स वही रहेगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी. तो 0, ये माइनस पाई बाई 2. अब सोचो यहाँ पे, यदि मैंने 0 से माइनस पाई बाई 2 कहा, तो मैं कौन सी क्वाड्रेंट करूँ. देखो ये 0 से माइनस पाई बाई 2 ऐसे काउंट करो. 0 से माइनस पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, कैन यू टेल मी. फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो ऐसे भी आप सोच सकते Sir. हैं. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव. नेगेटिव होता है, इसका मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ग्राफ होगा. Yes, sir. क्वाड्रेंट में ऐसे ग्राफ होगा. फिर माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बारे में सोचो. तो देखो ये माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया. ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना. तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा. फिर माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई, तो माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से कॉट आपका ये नेगेटिव हो गया. और इसके बाद क्या मिला, फिर माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस 2 पाई. क्या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए वापस, जस्ट चेक इट. माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस 2 पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए. तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये आपका पॉजिटिव होगा. और देख लो यही वाला ग्राफ फिर यहाँ फॉलो हो जाएगा. आप इसको ड्रॉ कर. अब इस ग्राफ को देख के बताओ लोग, इसके फंक्शन की पीरियड क्या कही जा सकती है. मतलब ये कॉर्टेक्स का ग्राफ है, तो इसकी पीरियड क्या कही जाएगी. सी, जो ग्राफ आपको 0 से पाई में दिख रहा है, वही ग्राफ पाई से 2 पाई में, और वही ग्राफ 2 पाई से 3 पाई में. मतलब हर एक इंटरवल का लेंथ कितना है, हर एक इंटरवल का लेंथ कितना है यहाँ पे, Sir, pi. पाई है. तो यहाँ पर क्या मैं पाई. पीरियड को कंक्लूड कर सकता हूँ. तो पीरियड इक्वल टू पाई. देखो tan का पीरियड क्या आया था, पाई आया था, और कॉट का पीरियड क्या आ गया, पाई ही चला आया. इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने वाले हम लोग बना लेते हैं. फटाफट ग्राफ को देखते हैं, हटा जा रहा है, आप लोग रिवाइज कर लेना एक बार. देखो सबसे पहली बात डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे. तो पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर डोमेन. देखो तो जरा डोमेन क्या है यहाँ पे. तो डोमेन तो ऑलरेडी क्लियर है, इंटायर रियल नंबर. उस पॉइंट को हटाना होगा जहां पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है. तो 0 और पाई मतलब मल्टीपल्स ऑफ n पाई. यही है ना. देखो y अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे. तो यहाँ पर डोमेन में क्या लिखेंगे, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, जहां पर n क्या होगा, z होगा. इस ग्राफ को देखो यहाँ पे, ये रेंज नीचे कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है वैल्यू, ये माइनस इनफिनिटी तक जा रही है. और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट तक. Infinity. तो रेंज में क्या लिखा जाएगा, ये इंटायर रियल नंबर लिखा जाएगा. इधर पॉइंट ¿Qué tal, joven? Mrs. Susan? ठीक है. नाउ थर्ड देखते हैं, कॉर्टेक्स. ये थर्ड पॉइंट क्या है, तो पीरियड मेंशन कर चुका हूं यहाँ पे. पीरियड क्या हो गया आपका, पाई हो गया. फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि कॉर्टेक्स 0 कहाँ पर होगा. ये कॉर्टेक्स 0 का पीरियड कितना होगा. तो पीरियड क्या है, देखो पाई है. पीरियड क्या हो गया इसका, पाई हो गया. पाई. पॉइंट की कॉर्टेक्स 0 कहाँ पे हो रहा था, कॉर्टेक्स 0 कहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे cos 0 होता है. तो 2n + 1 पाई बाई 2 हो गया. फिफ्थ पॉइंट इज कि कॉर्टेक्स अनडिफाइंड कहाँ पे होगा,
तो यहाँ पर आप लोग पता चल चुका है कि n पाई के मल्टीपल पे, ऑलरेडी उस स्लाइड में कर चुका था ना, बताया भी था कैसे हो रहा है। इज द पॉइंट क्लियर? तो n पाई के मल्टीपल पे क्या हो रहा था, अनडिफाइंड हो रहा था। 6 पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है। अच्छा देखो कॉटेक्स का रेंज क्या है, इंटायर रियल नंबर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन कॉटेक्स लेस देन इन्फिनिटी होगा, यही हुआ ना। तो यदि मैं मॉड लगा दूं, यदि कॉटेक्स के ग्राफ में यहाँ पर मॉड लगा दूं, तो ये कहाँ से कहाँ होगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 0 लेस देन इक्वल टू स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसे चला आएगा। मैं इसको मॉड करके दिखला दे रहा हूँ कैसे होता है मॉड का ग्राफ। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों से कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। एक इंटरवल ले लो, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे को -2π लेस देन x लेस देन 2π में, मतलब -2π से 2π के इंटरवल में हमको मॉड ऑफ कॉटेक्स चाहिए। तो कर लेते हैं, -2π से 2π चाहिए ना, ठीक है। तो ये आपका 0 और ये मान लो पाई हो गया और ये हमारा 2π हो गया। 0 ये -π और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया 0, यहाँ पर कर दिया -π और यहाँ से कर दिया मैंने -2π। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करो, पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लो, जो आपका बेसिक फंडामेंटल ग्राफ है उसको आप ड्रॉ कर लो। ये रहा, फिर ये 2π ये रह गया, फिर ये -π ये रहा और इसके बाद ये -2π ये रहा, ये रहा, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू डू, ड्रॉ द ग्राफ। 0 से पाई में यहाँ पर π/2 आता है, तो 0 से पाई में ग्राफ कैसा था, 0 से पाई में ग्राफ कैसा था, देखो ये 0 से π/2 और ये रहा। यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका 3/2, तो यहाँ पर ग्राफ आपका ऐसे चलाएगा, यहाँ पर ग्राफ ये ऐसे चलाएगा, फिर ये ऐसे चलाएगा, ठीक है। फिर ये 3π/2। अब बताओ हम मॉड ड्रॉ करना तो क्या करना चाहिए, एनी आइडिया? ये आपका पॉइंट है 3π/2, ये आपका पॉइंट है -π/2, रिफ्लेक्शन। आपका पॉइंट है -3π/2। क्या तरीका है मॉड को ड्रॉ करने का, जो सर निगेटिव y से नीचे वाले को रिफ्लेक्ट कर दो। And एक्स reflection. एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन। है, तो ये रिफ्लेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसका रिफ्लेक्शन क्या चला आया, ये चला आया, इसका रिफ्लेक्शन आपका ये चला आया, इसका रिफ्लेक्शन आपका ये चला आया। ओके, बाकी जो पोर्शन है आप उसको रिजेक्ट कर दो, इस पोर्शन को क्या करो ऐसा हटा दो, दिस पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड। ओके, गॉट द पॉइंट। ये आपका क्या हो गया, मॉड ऑफ कॉर्टेक्स, दिस इज योर मॉड ऑफ। अब देख के बताओ तो मॉड ऑफ कॉर्टेक्स का डोमेन और रेंज कहाँ पर है, देखो डोमेन तो ठीक है, रेंज कहाँ से, मिनिमम क्या है 0 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक, लेस देन Infinity. मॉड ऑफ कॉर्टेक्स लेस देन इन्फिनिटी। आप लोगों का एक होमवर्क है कि आप लोग ये ट्राई करेंगे, मॉड ऑफ y इक्वल टू कॉट x ट्राई करेंगे एंड देन y इक्वल टू कॉट मॉड x ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉट x। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टू फंक्शंस। फिफ्थ, y इक्वल टू सेकेंड x का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। y इक्वल टू सेकेंड x मेरे को ड्रॉ करना है, बहुत इजी है, आप लोग इसलिए कैच कर सकते हो। देखो अब इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप y इक्वल टू सेकेंड x है ना, इसको 1/cos x लिख दो, बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेकेंड को 1/cos x लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी यस और नो, लिख सकते हैं। Yes, sir. अच्छा cos Yes, sir. कहाँ लाई करता है, -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना। Yes, sir. यस सर। इसको उल्टा करना होगा, तो क्या मैं उल्टा करने का टेक्निक बताया था ना, यदि इंटरवल कंप्लीटली यस सर। इंटरवल Yes, sir. पॉजिटिव और नेगेटिव है, वहां तो आपको इनइक्वालिटी को भी उल्टा कर देना होता है। लेकिन यदि इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहे तो क्या करेंगे, याद आ रहा है कुछ? सर 0 ले लो बीच में। इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। स्प्लिट करेंगे, नहीं इसमें स्प्लिट करेंगे, इसको ऐसे 0 से करेंगे और फिर यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1 कर दूंगा। और अब मैं इसको उल्टा करूंगा, यदि मैं इसका उल्टा करूं, ये cos तो बन गया, cos बन जाएगा 1/cos, ये इनइक्वालिटी चेंज, तो -1 का उल्टा तो -1 ही आएगा, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ये 0 क्या बनेगा,
उल्टा करने पे ये जीरो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि निगेटिव इंटरवल है तो इसको हम लिखेंगे माइनस, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये जीरो क्या बनेगा, ये कंप्लीटली पॉजिटिव इंटरवल है, तो यहाँ पर जीरो क्या बन जाएगा, Infinity. इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1/cos x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1/cos x, क्या कर दो आप सेकेंड x कर दो, लेस देन इक्वल टू -1, और यहाँ से आप लिख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू सेकेंड x लेस देन इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ कि सेकेंड x जो है ये जो है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी मिलाई करेगा, जिसमें आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो आप सेकेंड एक्स के इस सेकेंड एक्स क्या फाइंड किया आपने, रेंज फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, कैन यू टेल मी? अभी आपने जो कैलकुलेशन किया वो सेकेंड एक्स के लिए क्या किया है, रेंज फाइंड किया कि डोमेन फाइंड किया? जस्ट टेल। अगर आपने रेंज, तो पूरा sec x इन्वॉल्व है ना, तो पूरा का पूरा फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ये आपने रेंज फाइंड किया। यदि मैं डोमेन पूछूं आप लोगों से तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, cos x, सो फॉर डोमेन पर्पस व्हाट विल हैपन, योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो cos x should not be equal to 0 means x should not be equal to odd multiple of pi by 2, x should not be equal to odd multiple of pi by 2। तो x जो है पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब होगा क्या कि यदि x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो पूरा फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। और बताया था ना कि जहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो वहां पर क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। मतलब हम इन पॉइंट पे पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या सेकंड कभी 0 हो सकता है? जस्ट टिक इट, या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, तो बीच वाली वैल्यू तो आएगी ही नहीं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग क्या करो, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो ऐसे, दिस इज कंप्लीट। अच्छा एक बात और देखो, ये -1 और 1 के बीच में तो नहीं आएगा ना, तो एक रेफरेंस ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, एक यहाँ पर ऐसे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लो, ताकि पता रहे कि हमको +1 से ऊपर रहना है और -1 से नीचे रहना है। सो दैट्स व्हाई वी आर ड्राइंग अ रेफरेंस लाइन हियर। अब ये आपका है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, इसको आप क्या करो, +1 कर दो और यहाँ पर इसको -1 कर दो। अब जिन जिन पॉइंट पे ये अनडिफाइंड होता है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड था, इसको ड्रॉ कर दो। 0 से पाई बाई 2, यहाँ बीच में कहीं पाई भी आएगा। फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, फिर बीच में यहाँ पर ये 2 पाई भी आएगा। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2। चले पहले पॉजिटिव वाला पार्ट कर लेते हैं, निगेटिव वाला पार्ट बाद में कर लेंगे। तो जिस पॉइंट पर अनडिफाइन है वहां पर मैंने क्या बताया आपको, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर पाई बाई 2 पे वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। फिर 3 पाई बाई 2 पर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद फिर मैं 5 पाई बाई 2 पे वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पहले पॉजिटिव वाले पार्ट में। अच्छा बताओ, cos x, ये जो सेकेंड x है, यदि x को तुम 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, कैन यू टेल मी? x को 0 पुट करने पे वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्योंकि 1. 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कुछ वैल्यू। x को 0 पुट करने पे सेकेंड 0 1 आएगा। x को पाई पुट, देखो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, जहां cos 1 होगा वहां सेकेंड भी 1 होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, Yes, जहां sir. पर cos 1 होगा वहां पर सेकेंड भी 1 होगा, 1/1। अब cos 1 कहां पर होता है, क्या मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, cos 1 कहां पर होता है, इवन मल्टीपल ऑफ, Yes, sir. Even multiple. इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos 1 होता है। तो जहां पे cos 1 होगा वहां पर ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, और जहां पर cos -1 होगा वहां पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, -1। तो 1 वाला पॉइंट कहां पे है, 2n पाई, और -1 वाला पॉइंट याद है आप लोगों को, 2n + 1 पाई, ऑड मल्टीपल। 1 pi. याद आया? सी Yes, sir. हुआ कि 0 पर हमें 1 मिलेगा, पाई पर हमें क्या मिलेगा, -1, 2 पाई पे क्या मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो
कीपिंग द रेंज इन माइंड कि माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यू Yes, sir. तो ये क्या किया, Opposite. 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा चला आएगा। दिस इज द ग्राफ, ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ π/2 टू π/2 टू π कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस की पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और पाई पे वैल्यू क्या रहनी चाहिए? -1 रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अनडिफाइंड पॉइंट -इन्फिनिटी होगा। फिर पाई से 3π/2 में क्या है? ये सेकंड नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे फॉलो हो जाएगा। 3π/2 से 2π कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? जस्ट गेस इट। 3π/2 से 2π which quadrant it is? Can I say it's fourth quadrant? Am I right? Yes, sir. Yes. 2π ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि अनडिफाइंड ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड तो होगा, लेकिन ये प्लस इन्फिनिटी लेगा और यहाँ से 2π ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। दिस पॉइंट 1। नाउ 2π से 5π/2 अब बताओ। देखो 2π कंप्लीट यहाँ पे। अब एक कंप्लीट रोटेशन, दूसरा रोटेशन स्टार्ट। सो 2π और ये आपका 5π/2। सो 2π to 5π/2 ये क्या कहलाएगा आपका? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो यहाँ भी क्या First रहेगा? quadrant. पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसा आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये आपने पॉजिटिव में ड्रॉ किया। निगेटिव में ट्राई कर लेते हैं। तो ये 0 है, यहाँ पर π/2 पॉइंट मार्क कर दो। यहाँ पे -π/2, यहाँ से ये आप -π कर लो इसको, यहाँ से इसको आप -3π/2 कर दो, और यहाँ से फिर आप एक -2π कर लो, और फिर यहाँ पर एक -5/2 लगा दो, और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर दो जहां जहां अनडिफाइन होता है। तो ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइन होता है, ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं यहाँ पे। देखो ऑड मल्टीपल पे क्या होगा? ये अनडिफाइन हो जाएगा। π/2, 3π/2, 5π/2 इसका नेगेटिव वैल्यू तो ऑड मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट अनडिफाइन वाला है, फिर ये पॉइंट अनडिफाइन वाला है, फिर ये पॉइंट अनडिफाइन वाला है। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। सी -π/2 से 0, कैन यू टेल मी ये कौन सा क्वाड्रेंट है? -π/2 से 0 आप इसको कौन से क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करोगे? एनी आइडिया? क्वाड्रेंट रोटेशन चेंज हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सेकंड पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव ना, इट विल फॉलो फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes, sir. और कॉस सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव, तो ये प्लस इन्फिनिटी से फॉल करते करते ये 1 तक आएगा ना। -π से -π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट? मतलब रोटेशन आपका चेंज हो चुका है। ये 0, ये माइनस, Third quadrant. तो -π/2 से -π ये क्वाड्रेंट है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव की पॉजिटिव, सो कंप्लीटली नेगेटिव ना। सो ये -π पे -1 लेगा और कंप्लीटली यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेगा। इसके बाद -π से -3π/2 ये पॉइंट आपका क्या रहा? -3π/2 रहा। सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव ही रहेगा। इसके बाद आ गए -3π/2 से -2π। सो -3π/2 से ये -2π एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, घड़ी ने पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लिया क्लॉकवाइज सेंस में। -3π/2 से -2π2 कौन सा क्वाड्रेंट है? टेल मी। -3π/2 से First. कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आपका जो ग्राफ First. +1 First है sir. ऐसे जाएगा, और एक लास्ट -2π से -5/2 ये क्वाड्रेंट आपको मिलेगा। तो Fourth. इसमें आपको ये फोर्थ पॉजिटिव मिलेगा। इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ सेकंड x। नाउ ओके, एनी कंफ्यूजन हियर? अब यहाँ से सर Sir, period. हाँ बताता हूँ, रुको पीरियड देख लेते हैं। देखो जो कॉस का पीरियड है ना, वही पीरियड सेकंड का भी रहेगा। देखो tan का पीरियड क्या आया था? पाई आया था, और कॉट का Yes. पीरियड क्या आया? पाई आया। दोनों फिर क्या होता है? उल्टा होते हैं। तो जो फंक्शन दूसरे का उल्टा है उनका पीरियड चेंज नहीं होता है। सेकंड क्या है? कॉस का उल्टा है, तो कॉस का पीरियड 2π है, यहाँ पीरियड चेंज नहीं, 2π रहेगा। आप देख भी सकते हो। देखो आपको पहली बार +1 कहाँ मिला? 0 मिला था, चेक करो। आपको पहली बार +1 कहाँ मिला? 0 मिला। दूसरी बार +1 कहाँ मिला? 2π पे मिला। मतलब सेम पॉइंट कहाँ पर मिला? 2π के बाद मिला। डिड यू गेट द पॉइंट?
मतलब जो पॉइंट आपको +1 मिल रहा है 0 पे, वही पॉइंट आपको 2 पाई मिल रहा है। ठीक है, देखो π/2 पे आपको +∞ मिला, वही +∞ आपको 5π/2 पर मिला। तो तुम कोई भी दो पॉइंट पकड़ के गैप चेक करोगे ना, तो लेंथ तुम्हारा 2 पाई। तो पीरियड क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ पर? 2 पाई। इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेते हैं यहाँ पे। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. डोमेन बिलोंग्स टू आर, डोमेन बिलोंग टू आर लिखा जाएगा। जस्ट डोमेन तो ये होगा ना, इंटायर रियल नंबर जहां पे अनडिफाइन होता है उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो डोमेन को हम क्या लिखेंगे? r माइनस 2n प्लस 1 π/2। रेंज को मैं क्या लिखूं? जस्ट वेरी फास्ट। देखो तो रेंज ऑलरेडी निकाला जा चुका है ना कॉस का। देखो Yes, sir. Minus infinity से -1 यूनियन 1 से infinity. -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका रेंज हो गया। तीसरा पॉइंट, इसका मैं लिखूंगा पीरियड। ठीक है, तो पीरियड तो आपका 2 पाई आ गया। आप लोग तब तक इस ग्राफ को ड्रॉ कर ले, मेरे को 1 मिनट का टाइम दे, पंचिंग करना है मेरे को। अच्छा, पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। अच्छा, तुम लोग देख के बताओ तो ये 1 कहाँ कहाँ देगा? ये कॉसेक का ग्राफ, सेकंड का ग्राफ मेरे को 1 कहाँ कहाँ देगा? आप ग्राफ तो हो सकता ही नहीं है ना, जहां पर सेकंड 1 तो 2n पाई। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, फोर्थ पॉइंट में, कि सेकंड x इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई x इक्वल टू व्हाट? 2n पाई। फिफ्थ पॉइंट में बताओ मेरे को फटाफट, सेकंड x इक्वल टू -1, तो कॉस वाला रूल फॉलो हो जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? बस 1 मिनट टाइम दो, ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। सी, जहां पर cos -1 होगा, जहां पर cos -1 वहां पर सेकंड -1, तो क्या आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाई x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, ब्राउज़र ओपन क्यों नहीं हो रहा है जल्दी से? 1 मिनट टाइम दिया तुम लोग। ठीक है, मैं थोड़ा पंचिंग कर रहा हूँ। What is happening? That is not loading. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. बताता हूँ तुमको अंडर द वाटर। हाँ, अंडर द वाटर डुबा दूंगा तुम पकड़ के उससे। किसका है अंडर वाटर? Excuse me, sir. यस Sir, आप वेटिंग रूम का enable कर दीजिए। मैं करता हूँ, एक बार बैठ के थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था कितना अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मैं भी एक मिनट पंचिंग कर रहा हूँ, मेरे को ऑफिस में लॉग इन करना पड़ता है ना, एक 9:50 से 10 के बीच में करना होता है। सो अभी 10 बजने वाला है, तो अलार्म लगा के रखा हूँ ताकि बोलना चाहूँ।
लगता है ना कि लैपटॉप में बहुत ज्यादा स्पेस काम ही नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है हर बात पर। क्लियर करना पड़ेगा स्पेस लैपटॉप में। ओके, लॉग इन, पंचिंग डन। सी, तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक और पॉइंट देखो, सेकेंड का रेंज क्या था? ये था ना कि सेकेंड एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करता था, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने सेकेंड में मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाएगा तो क्या होगा, निगेटिव वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट बच जाएगा। तो हम लिखेंगे कि मॉड सेकेंड एक्स जो है वो 1 से इन्फिनिटी में लाई करेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड सेकेंड एक्स लेस देन इन्फिनिटी। यदि आप इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स भी 1 इन्फिनिटी में लाई करेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 invite here 1 लेस देन इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स लेस देन इन्फिनिटी। अब आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे करके, y इक्वल टू आप लोगों को मॉड ऑफ सेकेंड एक्स का कर्व ड्रॉ करके दिखलाना है, दैट इज ओके। अब लास्ट जो कर्व है उसको फिनिश कर लेते हैं। हमारे पास मैंने 5 ग्राफ डिस्कस कर लिए, लास्ट कर्व जो हमारे पास है वो है cosec x का। सिक्स्थ वन इज अबाउट y इक्वल टू cosec x, ठीक है। तो cosec x भी हो जाएगा, cosec x हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू cosec x मींस 1 अपॉन sin x, राइट हियर 1 अपॉन sin x हो गया। अब sin x से हम डिराइव करेंगे कि cos x का रेंज क्या होगा, और देख लेते हैं कि अनडिफाइंड वाले पॉइंट कौन कौन से, अनडिफाइंड वाले पॉइंट कौन कौन से, कैन यू टेल मी। ये अनडिफाइंड कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर 0 होगा, sin x, हाँ sin x 0 होना चाहिए, तो x इक्वल टू n पाई, मतलब x इक्वल टू n पाई पे ये फंक्शन का होगा आपका अनडिफाइंड होगा। अच्छा y इक्वल टू 1 कब होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन 1 कब बनेगा, जब sin x 1 बने, राइट क्या, जब sin x आपका क्या बने 1 बने, तो sin y इक्वल टू 1 मतलब sin x को 1 होना चाहिए। तो sin x, नहीं नहीं sin x 1 कहाँ होता है देख लेंगे, अब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वो देख लेते हैं बाद में। इसको कर लेते हैं, हमको पता है कि -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। हमें cos x उल्टा करना होगा, तो पहले इंटरवल का स्प्लिट कर लो, -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर 0 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इसको उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो इंटरवल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन sin x, ये ग्रेटर देन, अब ये कंप्लीटली नेगेटिव इंटरवल है, तो यहाँ पर 1/2 क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी के पास माइनस इन्फिनिटी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, आप देखो 1/sin x क्या होगा, cosec x हो गया, तो आप लिख सकते हो कि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू cosec x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, मींस माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल, माइनस इन्फिनिटी लेस देन cosec x लेस देन इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ उल्टा करेंगे तो देखो 1/0 क्या बनेगा आपका, इन्फिनिटी ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल टू हट जाएगा, ये होगा 1 अपॉन sin x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 हो गया। सो आप लिख सकते हो कि इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1 अपॉन sin x क्या हो जाएगा आपका, cosec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू cosec x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब cosec x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, cosec x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ, प्लीज टेल मी, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ, इसको समझने में किसी को दिक्कत, everyone please respond me, is this point No, clear sir. to all of you? नो सर क्लियर है। Yes, sir, clear. ठीक, Yes, sir. अब मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ग्राफ प्लॉट करूंगा तो क्या होगा, देखो ये आपका y एक्सिस रहा और ये आपका x एक्सिस रहा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो क्या करो कि पहले इसको दो लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे देख क्या लग रहा है कि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा, या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। तो क्या करो यहाँ पर आप दो लाइन ड्रॉ कर लो, एक 1 के लिए ड्रॉ कर लो और दूसरा क्या करो आप -1 के लिए ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि पता रहे कि हमको ग्राफ को कहाँ से कहाँ कन्फाइंड करना है। तो एक हमको रखना है इसको +1 के बीच में, +1 और +1 से ऊपर रखना है, -1 से नीचे रखना है। अब अनडिफाइन वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ पे अनडिफाइन होगा, n पाई पे। तो n पाई पे अनडिफाइन होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आप π/2 लिख लो, फिर पाई मार्क कर लो, फिर ये 3π/2, फिर ये 2π, फिर ये 5π/2 और फिर यहाँ पर ये 3π। चलो 3π तक ड्रॉ करते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे निगेटिव इंटरवल ले लेते हैं, -π/2, फिर ये हो गया आपका -π, this will be your -3π/2, this is now -2π, this is now -5π/2 and this is your -3π। ओके, अब जहां जहां अनडिफाइन वाला पॉइंट है वहां वहां एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ऐसे कर लेते हैं। देखो पाई पे अनडिफाइन था, यहाँ पर क्या करो वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दो। फिर कहाँ पे अनडिफाइन था, 2π पे, तो 2π पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। इसके बाद 3π पे वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, नेक्स्ट अगला कहाँ ड्रॉ करूंगा मैं, -π पे ड्रॉ करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर -2π पे ड्रॉ करूंगा और फिर मैं यहाँ पर -3π पे ड्रॉ कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। सी ये आपका ओरिजिन है, पता करोगे देखो 0 पर क्या होगा, साइन अनडिफाइन होगा, साइन नहीं कॉसेक। 0 पर कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइन होगा, और पाई पर भी अनडिफाइन होगा। π/2 पर क्या होगा, जस्ट चेक में, जस्ट चेक करो, π/2 पुट करो तो sin π/2 कितना होता है, 1 होता है। 1/1 क्या हो गया, 1। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर 1 मिलेगी, यहाँ पर आपको 1 मिलेगी। अब ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, इस दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आपका जो ग्राफ होगा बेटा इस तरह से बन जाएगा, ये और फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद पाई से 3π/2, टेल मी, ये 0, ये पाई 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। अब पाई से 3π/2 में क्या होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा। 3π/2 मतलब आपको यहाँ पे इंटरवल क्या दिख रहा है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट, एक फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉसेक आपका नेगेटिव होगा। और 3π/2 पर वैल्यू क्या होगी, चेक कर लो, साइन 3π/2 -1 होता है, तो 1/-1 ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 आएगा और ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा, अनडिफाइन, फिर ये -1 लेगा और फिर यहाँ पर ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, 2π से 2π 5π/2। सो नाउ यदि आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो 2π मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन आपका हो गया। तो 2π 5π/2, 1 सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और 5π/2 से 3π ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस दोनों पोर्शन में पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। देखो साइन 5π/2 आप निकालोगे तो साइन 5/2 क्या होगा, आपको +1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ हुआ ऐसे आ गया। सो दिस इज द ग्राफ। ओके, नाउ लेट्स ट्राई द नेगेटिव डायरेक्शन। सो नो इशू, नेगेटिव डायरेक्शन ट्राई करोगे देखो ऐसा पोर्शन बनेगा एक, और ये एक ऐसा बन जाएगा। सोचो 0 से -π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से -π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/2 से -π ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो फोर्थ और थर्ड दोनों में क्या होगा, ग्राफ नेगेटिव रहेगा आपका कॉसेक का। फिर -π से -3π/2, क्योंकि रोटेशन चेंज हो गया ना, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये -π, ये -π/2, तो ये -π से -3π/2 बताओ तो फटाफट, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना, -π से -3π/2, और -3π/2 से -2π ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो पॉजिटिव रहेगा साइन और ये वैल्यू यहाँ पर 1 लेगा, ऐसे ये आपका 1 ले लिया। ठीक है ना, अब देखते हैं कि -3π से -3π, -2π से -5/2, तो 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीटेड हियर, -2π, -2π से -3π/2 करोगे, -2π से -5π/2 यहाँ पर आओगे तो ये तुमको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ और थर्ड हो गया ये। तो ये ग्राफ यहाँ पे इस तरह से ऐसे बन गया। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन करना है हम लोग कर लेते हैं। देख के बताओ तो ये इसका डोमेन और रेंज क्या लिखा जाना चाहिए, जस्ट टेल मी, इसका डोमेन और रेंज क्या लिखा जाना चाहिए। सर डोमेन r - n पाई।
हाँ, इंटायर रियल नंबर ऑलरेडी जहाँ पे अनडिफाइन था उस पॉइंट को हटा देंगे। तो कहाँ पे अनडिफाइन था? n पाई पे अनडिफाइन था, तो इंटायर रियल नंबर N pi। एक्सेप्ट n पाई कर देंगे। दूसरा, मैं रेंज की बात करूं तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं रेंज इसका। यदि मैं रेंज की बात Yes। करूं तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर रेंज निकाल चुका हूं। रेंज क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से माइनस यूनियन 1 इन्फिनिटी। यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब यही हुआ ना इसका कि जो cosec x की जो वैल्यू होगी वैसे लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। वहीं पे कुछ और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। मान लो मैंने मॉड cosec x पूछ दिया, तो ये कहां से कहां लाई करेगा? मॉड cosec x, तो निगेटिव वाला इंटरवल हटा दो, तो ये आपका 1 इन्फिनिटी क्लोज में लाई 1 to करेगा। आप ऐसे infinity। भी लिख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू मॉड cosec x लेस देन इन्फिनिटी। यदि मैंने आपको ये पूछ दिया cosec स्क्वायर x कर दिया, मतलब cosec में क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो कुछ नहीं, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वही रह जाएगा। देखो निगेटिव भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर रहा है ना, तो निगेटिव वाला पार्ट भी क्या होगा? स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये भी आपका 1 इन्फिनिटी रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x लेस देन इन्फिनिटी। यदि मैं इसके पीरियड के बारे में बात करूं, बताओ तो इसका पीरियड क्या होगा फटाफट? 2 पाई। जो साइन का पीरियड है वही यहाँ भी रहेगा, चेक कर लो। देखो आप सोचो कि जो पॉइंट आपको यहाँ पर +1 मिला पहली बार π/2 पर मिला, तो अगली बार +1 कहाँ मिला? 5 π/2 पे। अब इस दोनों पॉइंट के बीच में गैप कैलकुलेट कर लो। गैप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल लो। तो आप देखो 5 π/2 माइनस π/2 करोगे तो ये 4 π/2, मतलब क्या आ गया आपका? 2 चला आया। तो इस तरह से आपका ये पीरियड भी क्या हो गया? 2 पाई चला आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे ले लीजिए, होमवर्क करिएगा। y इक्वल टू मॉड ऑफ cosec x ड्रॉ करना है, फिर y इक्वल टू cosec ऑफ mod x भी ड्रॉ करना है, और फिर आपको mod ऑफ y इक्वल टू cosec x भी ड्रॉ करना है। ये ट्राई करना है आपको घर पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पर सिर्फ और Sir। सिर्फ, हाँ बोलो।